We move on to, let us say, functions of state education. It's part of the, let's say, broader topic of education and quality. We see that education is a state function. So, as part of the Universal Declaration of Human Rights, which was in 1948, education has been recognized as a human right. So, every human being has the right to get education, and the state is, let's say, responsible for the provision of education to every child, every citizen, irrespective of, let's say, one's gender, irrespective of, let's say, one's ethnicity or any other basis of differentiation. और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया किस चीज़ ने, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड that was in 1989. It strengthened and broadened the concept of the right to education. तो ये जो right to education की बात आ गई है, तो this becomes an obligation on the part of state to provide this education. If the state is not providing, let's say, fulfilling this right to the child, then state can be, legal action can be taken about the against the functionaries. So look at the functions in the light of Convention on the Rights of the Child and Education. So यहाँ पर ये ज़्यादा जो लेट्स से परवेसिव बात आ गई है या रूल हम उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. So it is human rights based approach to education for all. तो यहाँ बात आ रही है नॉट के मेल है कि फीमेल है, नॉट के फ़लाँ एथनिक ग्रुप का है, फ़लाँ एथनिक ग्रुप का है या फ़लाँ रिलीजन का है. That's a human being. The child is to be treated as a human being, and as a human being, that child has the right to get the education. And when it has the right, then it is the responsibility of the state to meet that obligation. And if it does not, then under the law, action could be taken. So state has the obligation to provide the education. जो उसका राइट है, तो ऑब्लिगेशन ये किसके ज़िम्मे है कि वो राइट उसको दिया जाएगा. ये राइट जो है वो स्टेट के पास चला गया. तो इट हैज़ 3 डायमेंशंस. तो पहली डायमेंशन ये है कि राइट ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. तो उसके अंदर हम बात करें तो एजुकेशन थ्रू आउट ऑल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड एंड बियॉन्ड. So education has to be provided throughout the child's, let us say, initial stages of childhood, and even beyond that, जिसको आप teen adolescent कह लें, या उसके बाद भी जो है एजुकेशन के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए. And people might have the right to get education at any place if they are eligible for that. दूसरी बात उसमें है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, कि जहाँ वो राइट को हम मानते हैं तो वहाँ हमारा एक ऑब्लिगेशन ये भी आता है स्टेट के लिए कि दैट एजुकेशन शुड बी अवेलेबल. नॉट ओनली अवेलेबल, इट शुड बी एक्सेसिबल, कि वो जो बच्चा जो है वो उस एजुकेशन को हासिल तो कर एक्सेसिव वहाँ है तो सही, अवेलेबल तो है, बट has can this child have an access to this education. उसकी पहुंच में है. ये पहुंच जो है, accessibility जो है, it could be looked at in a very broader perspective. वो चाहे geographical distance की बात कर रहे हैं, चाहे वो let's say finances की बात कर रहे हैं, चाहे other facilities की बात कर रहे हैं. So it should not only be available, it should be accessible, it should be within the reach of the child. और तीसरी बात इसमें आ रही है equality of opportunity. So every child gets the opportunity to have an access to that education. So
state has the obligation to ensure the right of access to education to every, let's say, citizen of the country. दूसरी जो डायमेंशन है, द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, इसके अंदर बात आ रही है ब्रॉड, रेलेवेंट एंड इंक्लूसिव करिकुलम। वो किसी एक लेट्स से काइंड ऑफ चिल्ड्रन के लिए नहीं है, बट इट शुड बी ब्रॉड, विच शुड बी लेट अस से applicable, available to all the children, within the reach of all the children. Rights based learning and assessment. और फिर एनवायरनमेंट की बात आ रही है, द एनवायरनमेंट शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली, कि ये नहीं है कि डर के बच्चे वहाँ से भाग जाएं, बल्कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट अगर देखें तो इसको आप सेफ्टी के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। फिज़िकल सेफ्टी की बात है, मेंटल सेफ्टी की बात है, देन हेल्दी एनवायरनमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो स्टेट ऑब्लिगेशन टू इंश्योर द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। तीसरी बात है द राइट टू रिस्पेक्ट इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसमें आ रही है कि वो कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है। तो वी हैव टू ensure that we provide respect to the identity of the child, whatever, मेल है, फीमेल है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, या कुछ और चीज़ आ रही है, कोई हैंडीकैप भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमें वी हैव टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेशन राइट्स। तो आइडेंटिटी की बात है, देन पार्टिसिपेशन, एवरी चाइल्ड हैज़ द लेट्स से राइट टू participate, express himself, share his opinion with others, then respect for integrity. So state obligation to respect children's rights in the learning environment. So overall the state has the obligation to fulfill, respect and protect the rights to education. किसके rights हैं? बच्चों के, child का right है, children have the right to, let's say, get education. State का obligation है, they have to provide all that. This approach focuses on let's say the political and economic environment, कि ऐसे environment होंगे जिसके अंदर ये बच्चे का right जो है ये उसको मिलेगा। अब पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें उसके लेटर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ सकती है, उसमें फ़ी भी आ सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके साथ ही लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कि अगर ये स्टेट नहीं प्रोवाइड करती तो व्हाट एक्शन कुड बी टेकन, और अगर कंपलसरी एजुकेशन हो गई है, पेरेंट्स नहीं भेजते, तो व्हाट एक्शन could be taken. So legislative framework has to be there. और तीसरी बात है the education policies that are needed to fulfill these three obligation. तो हम ये देखते हैं कि इस अप्रोच में the interest of every child is on top. That is the supreme. उसकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट है, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट की, लेट्स से हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी की बात है, अवेलेबिलिटी की बात है। तो फोकस इज़ ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी चाइल्ड। और ये जो सारी जो डिस्कशन अभी हुई है, इसको और डिटेल से देखना होगा। तो ये यूनेस्को या हमारे यूनिसेफ की एक पब्लिकेशन है, 2007 में आई है, ए ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन। उसमें देखेंगे तो और बहुत सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। सो दैट इज़ हाउ वी लुक एट इट।